ویلکم 11 اسٹار مسٹریز. ہم آپ کے لیے سچی کہانیاں لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. ہاربن کا خونی قلعہ اور دیوان سنگھ کی آمد. 1939 کے سرد منچوریا کی برفیلی ہواؤں میں موت کا رقص جاری تھا. برصغیر کے ایک معزز اور تعلیم یافتہ سرکاری افسر دیوان سنگھ کو، جو کبھی راجپوتانہ کی ریاست میں برطانوی انتظامیہ کا حصہ رہا تھا، ایک خفیہ مشن کے بہانے اغوا کر کے یہاں لایا گیا. جب اسے ٹرین سے اتارا گیا تو اس کے سامنے کنکریٹ کی ایک ایسی دیوا ہکل عمارت کھڑی تھی جس کی کھڑکیاں نہیں تھی. یہ یونٹ 741 کا مذبح خانہ تھا. یہاں لائے جانے والے انسانوں کو قیدی نہیں بلکہ ماروٹا یا لکڑی کے لٹھے کہا جاتا تھا. دیوان سنگھ کو ایک ایسی کوٹھڑی میں ڈالا گیا جہاں فرش پر انسانی خون کی تہیں جمی ہوئی تھی. یہاں کی ہوا میں ایک ایسی بو تھی جو عام قبرستانوں میں نہیں ہوتی. یہ تازہ خون، سڑتے ہوئے گوشت اور تیزابی کیمیکلز کا ایک ایسا آمیزہ تھا جو سانس لینے پر پھیپھڑوں میں سوئیوں کی طرح چبھتا تھا. دیوان نے دیکھا کہ اس کے سیل کی دیواروں پر ناخنوں سے کھرچے ہوئے عجیب و غریب نشانات تھے، جیسے کوئی مرتے وقت زمین کی تہوں میں چھپنا چاہتا ہو. پہلی رات کا سناٹا ایک ایسی دلخراش چیخ سے ٹوٹا جو کسی انسانی حلق سے نکلتی معلوم نہیں ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے جسم کو دھیرے دھیرے دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہو. ڈاکٹر ایشی، جو اس وحشت کا بانی تھا، اپنے سفید کوٹ پر خون کے چھینٹے لیے راہداریوں میں گھومتا اور قیدیوں کو ایسے دیکھتا جیسے قصائی بکروں کو دیکھتا ہو. دیوان سنگھ کی روح لرز اٹھی جب اس نے دیکھا کہ ایک گارڈ ایک چھوٹے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، کیونکہ اس بچے کا نمونہ نمبر تجربے کے لیے تیار تھا. 6 سے آنے والی ہتھوڑوں کی آوازیں اور پھر اچانک خاموشی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ ایک اور لکڑی کا لٹھا کام آ چکا ہے. یہاں کا ماحول نفسیاتی اذیت سے بھرا ہوا تھا. پہرے داروں کو سختی سے حکم تھا کہ وہ قیدیوں سے کوئی ہمدردی نہ کرے بلکہ انہیں صرف گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھے. ہر صبح جب بھاری لوہے کے دروازے کھلتے تو دیوان سنگھ کو محسوس ہوتا کہ شاید آج اس کی باری ہے. اس نے دیکھا کہ برابر والے کمرے میں ایک بزرگ قیدی کو زبردستی ایک گیس چیمبر میں بند کیا گیا جہاں فاسجین گیس کا تجربہ کیا جانا تھا. دیوان نے شیشے کے پیچھے سے دیکھا کہ اس شخص کی جلد سیکنڈوں میں نیلی پڑ گئی. اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی اور وہ اپنی ہی زبان چبا کر مر گیا. ڈاکٹروں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال کر جار میں محفوظ کر لی جیسے وہ کوئی قیمتی ہیرا ہو. یہ یونٹ 741 کا وہ پہلا منظر تھا جس نے دیوان سنگھ کے ہوش و حواس چھین لیے اور اسے احساس دلایا کہ یہاں موت ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو آسانی سے نہیں ملتی. دوسرے مرحلے میں وحشت نے اپنی تمام حدود پار کر دی. دیوان سنگھ کو ایک صبح زبردستی آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، لیکن یہ شفا خانہ نہیں بلکہ انسانی ذبح خانہ تھا. وہاں ایک نوجوان عورت کو میز سے آہنی زنجیروں کے ذریعے جکڑا گیا تھا. ڈاکٹروں کا گروہ، جن کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے جراحی کے آلات تھے، اس کے گرد جمع تھا. جاپانی نظریہ یہ تھا کہ اینستھیزیا، بے ہوشی، انسانی خلیات کے قدرتی رد عمل کو متاثر کرتی ہے، اس لیے تجربات زندہ اور بیدار حالت میں کیے جانے چاہیے. دیوان سنگھ کو 2 گارڈز نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے. سکے. ڈاکٹر ایشی نے اپنی اینک صاف کی اور ایک لمبا نشتر اٹھایا جو روشنی میں چمک رہا تھا. ڈاکٹر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس عورت کے پیٹ پر ایک گہرا عمودی کٹ لگایا. اس کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن ڈاکٹروں کے چہرے سپاٹ تھے. وہ اس کے اندرونی اعضاء کو
एक एक करके निकाल रहे थे ताकि ये देख सके कि इंसान कितने आज़ा के बगैर और कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। खून के फवारे डॉक्टरों के चश्मों पर पड़ रहे थे, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से अपनी नोटबुक्स पर मुशाहिदात लिख रहे थे। उन्होंने इसका जिगर निकाला और फिर उसे वापस अंदर डालकर टाँके लगाने लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या जिस्म उसे दोबारा कबूल करता है। दीवान सिंह ने देखा कि वो औरत दम तोड़ने तक होश में थी और इसकी आखिरी नजरें दीवान की आंखों में गड़ी थी, जैसे वो इससे इस जुल्म का हिसाब मांग रही हो। इसी हफ्ते एक और हौलनाक तजर्बा किया गया। एक कैदी के दोनों हाथ काटकर उन्हें उल्टी सिमत में पेबंद कर दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि क्या खून की गर्दिश उल्टी सिमत में मुमकिन है। कैदी का जिस्म इस तकलीफ से ढंग की तरह मुड़ गया और इसके हल्क से ऐसी घटी हुई आवाजें निकली जो शायद जहन्नम के गहरे तरीन गड्ढे से आती हो। जब वो दर्द से पागल हो गया तो उसे घोड़े का खून इंजेक्ट कर दिया गया ताकि देखा जा सके कि इंसानी जिस्म जानवर के खून पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। इसका पूरा जिस्म सूजकर नीला हो गया और चंद मिनटों में वो एक बदसूरत गोश्त के ढेर में बदल गया। दीवान सिंह को अब हर साए में वो कटे हुए हाथ नजर आते थे, यहां तक कि उन्हें ऐसी ग़िज़ा दी जाने लगी जिसमें इंसानी गोश्त का सफूफ शामिल होता था, ताकि ये देखा जा सके कि क्या इंसानी जिस्म अपने ही हम जिन्स का गोश्त हजम कर सकता है। दीवान सिंह ने भूख से तड़प कर जब रोटी का निवाला लिया और उसे हड्डी का एक छोटा टुकड़ा मिला तो उसने अपनी पूरी जिंदगी की तय कर दी। उसे मालूम हो चुका था कि वो अपने ही किसी साथी को खा रहा है। जब मंचोरिया की हड्डियों को पिघलाने वाली सर्दी आई तो यूनिट 721 के तजर्बात की वहशत में मजीद इजाफा हो गया। अब फ्रॉस्ट बाइट यानी मंजमिद गोश्त के तजर्बात का वक्त था। दीवान सिंह और 20 दीगर कैदियों को नंगे बदन -50 डिग्री के दर्जा हरारत में बाहर मैदान में खड़ा कर दिया गया। इनके जिस्मों पर वक्फे वक्फे से बर्फानी पानी डाला जाता रहा, यहां तक कि इनके बाजू और टांगे लकड़ी की तरह सख्त और बेजान हो गई। दीवान ने देखा कि उसके साथ खड़े एक कैदी की उंगलियां बर्फ बनकर खुद ब खुद गिर रही थी, जैसे सूखी टहनियां टूटती है। उसने अपने बाजुओं को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रगों में खून की जगह शीशा जम गया हो। जापानी गार्ड्स इन मंजमिद आज़ा पर भारी डंडों से ज़रब लगाते, जिससे गोश्त किसी शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता और नीचे से काली पड़ चुकी हड्डियां नजर आने लगती। इसके बाद इन कैदियों को खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता ताकि ये मुशाहिदा किया जा सके कि जमा हुआ गोश्त कितनी तेजी से हड्डी को छोड़ता है। दीवान सिंह ने वो मंजर देखा जो उसे कब्र तक याद रहा। एक कैदी का पूरा बाजू कंधे से लेकर उंगलियों तक गर्म पानी में जाते ही खाल समेत अलहदा हो गया और नीचे सिर्फ सफेद हड्डी बाकी रह गई। वो शख्स दर्द की उस हद पर था जहां चीख भी निकलना बंद हो जाती है। गार्ड्स उस मंजर पर कह लगाते और एक दूसरे से शर्तें लगाते कि अगला टुकड़ा कब गिरेगा। सर्दी के इन तजुर्बात के बाद हयातियाती जंग के मरहले में मजीद तेजी लाई गई। यूनिट 741 ने लेबॉर्ट्रियों में ताउन, हैजा और एंथ्राक्स के ऐसे महलक जरासीम तैयार किए थे जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते थे। कैदियों को जबरदस्ती इन जरासीमों के इंजेक्शन लगाए जाते। दीवान सिंह ने देखा कि इसके सेल में मौजूद लोग चंद घंटों में कारे पड़ने लगे। इनके जिस्मों पर बड़े बड़े पीप भरे फोड़े निकल आए जो फटते तो इनसे नाकाबिल बर्दाश्त ताअफ़ुन उठता। डॉक्टर इन मरते हुए लोगों के गिर्द खड़े होकर इनकी नब्ज़ चेक करते और देखते कि मौत कितने मिनट में वाक़े होती है। एक तजुर्बे में
कैदियों को एक मैदान में खंभों से बांध दिया गया और उन पर ऐसे बम गिराए गए जिनमें जरासीम ज़दा पस्सों भरे हुए थे। दीवान सिंह ने देखा कि कैसे वो कीड़े जिंदा इंसानों के जिस्मों को खोर्दनी अशिया की तरह चाट रहे थे, और वो बेबस कैदी सिर्फ तड़प सकते थे, भाग नहीं सकते थे। अगस्त 1945 में जब जापानी सल्तनत के जवाल के आसार नुमायां हुए, तो यूनिट 741 में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये अमन की नहीं, बल्कि सबसे बड़े कत्ले आम की तैयारी थी। हुक्म दिया गया कि तमाम मारोता को खत्म कर दिया जाए और इमारत को उड़ा दिया जाए, ताकि दुनिया को इन मजालिम का कभी पता न चल सके। कैदियों को बताया गया कि इन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन ये एक और झूठ था। दीवान सिंह ने देखा कि कैसे सैकड़ों कैदियों को एक साथ जहरीली गैस के चेम्बर्स में धकेला गया। इनकी आखिरी चीखों से पूरा कला गूंज रहा था, लेकिन बाहर खड़े फौजी सिर्फ पेट्रोल छिड़कने में मसरूफ थे। उन्होंने इन तमाम फिल्मों को भी जला दिया जिनमें इन तजुर्बात को रिकॉर्ड किया गया था। वान सिंह को एक बड़े गड्ढे के किनारे खड़ा किया गया, जहां पहले ही लाशों का अंबार लगा था। एक गार्ड ने उसकी गर्दन पर बंदूक रखी, लेकिन ऐन उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे जमीन लरज उठी और गार्ड का तवाजुन बिगड़ गया। गोली दीवान के सर को छूती हुई निकल गई और वो बेहोश होकर लाशों के ढेर में गिर गया। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। उसके इर्द गिर्द इंसानी आज़ा का ढेर था और फिजा में इंसानी चर्बी के जलने की वो भारी और मीठी बू फैली हुई थी जो रूह को बीमार कर देती है। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ के नीचे किसी का कटा हुआ सर है, जिसकी आंखें अब भी खुली थीं। वो इन कटी फटी लाशों के दरमियान से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसका पूरा जिस्म खून और राख से ढका हुआ था। उसने देखा कि यूनिट 741 की अजीमुल शान इमारत अब मलबे का ढेर थी, लेकिन उस मलबे के नीचे लाखों बेगुनाह इंसानों की दास्तानें दबी थी। वो इन भट्टियों के करीब से गुजरा, जहां से अब भी इंसानी हड्डियों के जलने की आवाजें आ रही थी। दीवान सिंह मंचोरिया के तारीक जंगलों की तरफ भाग निकला। उसके पीछे भट्टियां अब भी दहक रही थीं। वो बच तो गया, लेकिन उसकी रूह वहीं मर चुकी थी। वो अपनी बाकी जिंदगी कभी किसी इंसान की आंखों में आंखें डालकर ना देख सका, क्योंकि उसे हर आंख में यूनिट 741 का वो खून आशाम मंजर नजर आता था। उसे एहसास हुआ कि वो कभी वापस अपने वतन, अपनी मट्टी में वो इंसान बनकर नहीं जा पाएगा जो वो कभी था। ये वो स्याह सच्चाई है जो तारीख के सफ़हात में तो शायद धुंधला जाए, लेकिन हार्बन की मट्टी से इन बेगुनाह रूहों की पुकार आज भी आती है जो इंसाफ की मुंतज़िर है।